دور ہوا پرانا کراچی والوں کے لیے اچھی خبر۔ وزیر اعظم عمران خان آج کراچی میں گرین لائن بس سروس کا افتتاح کریں گے۔ 15 دن ٹرائل آپریشن کے بعد عوام کے لیے اسے 25 دسمبر سے کھولا جائے گا۔ ہر بس میں 200 سے 250 افراد کی گنجائش ہوگی اور کرایہ 20 سے 50 روپے تک ہوگا۔ بسیں چلائی جائیں گی۔ ہر بس میں 200 سے 250 افراد کی گنجائش ہوگی اور کرایہ 20 سے 50 روپے تک ہوگا۔ ہر بس اسٹیشن پر جدید لفٹس اور ٹکٹس کا خودکار نظام ہے۔ بسوں کی آمد و رفت کی تمام تر تفصیلات ڈیجیٹل سکرین پر نظر آئیں گی۔ بس پہ USB لگانے کی سہولت بھی ہے اور ویل چیئر کا مکمل نظام موجود ہے۔ کنٹرول روم کے ذریعے 900 سے زائد کیمروں سے مسافروں اور بسوں پر نظر رکھی جائے گی۔ گرین لائن بس منصوبے کا سنگ بنیاد میاں نواز شریف نے 26 فروری 2016 میں رکھا تھا۔ 1 سال کی بجائے یہ منصوبہ 5 سال سے زائد عرصے بعد بھی نامکمل ہے۔ کراچی میں گرین لائن بس سروس کا افتتاح مزار قائد کے قریب نمائش چورنگی میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی آمد سے پہلے افتتاحی تقریب کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، جانیں گے اپنے نمائندے عاصم اشرف سے۔ جی عاصم، آج کراچی کے شہریوں کے لیے اچھا دن ہے، خوشخبری کا دن ہے، کیونکہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو گرین لائن بس سروس منصوبے سے جو ہے وہ منسلک کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا 2016 میں جب اس منصوبے کا آغاز ہوا تو جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی ایک بہتر اور اچھی سہولت میسر آ سکے گی۔ آج وہ دن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی پہنچ رہے ہیں اور اس مقام پر جہاں پر ہم موجود ہیں، نمائش بس اسٹیشن یہ بنایا گیا ہے، اسی مقام پر اندر جو ہے وہ زیر زمین باقاعدہ پنڈال سجا دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم عمران خان یہاں آ کر جو ہے وہ باقاعدہ منصوبے کا افتتاح کر دیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے شہری کچھ حد تک پر امید بھی ہیں، اور بلکہ کراچی کے شہریوں کا زیادہ تر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بس سروس منصوبہ جو ہے وہ کراچی جیسے میگا سٹی کے لیے جو ہے وہ ادھورا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مزید منصوبے فوری طور پر شروع کرنے چاہیے اور فوری طور پر اس کو مکمل بھی کرنا چاہیے تاکہ کراچی جو ہے وہ کراچی کے شہری تمام جو ہے ٹرانسپورٹ کی سہولت سے مستفید ہو سکے۔ گرین لائن بس سروس کے افتتاح پر کراچی والے کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعظم جانے گرین بس جانے، ہم تو غریب آدمی، امید تو ہے، باقی آگے دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے کیا ہوتا ہے، بس یہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ یہ ہے کہ چھوٹی گاڑیاں ٹائم بھی زیادہ لیتی ہیں، کرایہ بھی زیادہ لیتی ہیں، تو اس کے آنے سے ٹائم بھی بچے گا، سہولت بھی ہوگی، بندہ بالکل اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا، عوام کو ریلیف مل جائے گا، اس سے نا آسانی مل جائے گی، اس کو بہت ہونا چاہیے، بالکل عوام کو آسانی ہے، یہ عوام کے لیے خدمت کر رہے ہیں اسے۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو تختیاں لگانے اور افتتاح کرنے کا شوق ہے۔ گرین لائن منصوبے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ 3 ماہ کا کام 3.5 سال میں مکمل ہوا۔ احتساب عدالت کراچی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے جھوٹے ریفرنس بنائے جاتے ہیں۔ احتساب کا ادارہ خود حساب نہیں دے رہا، چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں کیمرے لگے، عوام خود دیکھیں کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ 3.5 سال کے بعد جو 3 مہینے کا کام تھا مکمل ہوا، آج وہ وزیر اعظم جس کا اس پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں، آج وہ اس کا افتتاح کرنے آ رہا ہے۔ بہرحال ان کو افتتاح اور تختیوں کا شوق ہے، یہ شوق پورا کر لیں۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ ایک منصوبہ اس ملک میں بنا دیں۔ ان کی حکومت نے شروع کیا ہو، ریفرنس جھوٹے بنائے جاتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں، اپوزیشن کو دبانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو لائیو دکھائیں کہ ان عدالتوں میں تماشا کیا ہو رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے عمران خان کا نام اعلان خان ہونا چاہیے، یہ صرف اعلان کی حکومت ہے۔ یہ بس سروس کو جنگلہ بس سروس کہتے تھے۔ وفاق نے وعدوں کے باوجود کوئی کام نہیں کیا۔ ملک میں بے حد مہنگائی ہے، انہیں اندازہ نہیں غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا۔ اعلانات پر مبنی حکومت ہے، ان کا نام ہونا چاہیے اعلان خان۔ اعلانات کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وعدے وفا تو نہیں کرتے۔ کراچی شہر کے لیے 162 ارب روپے چھوڑے، 1100 ارب روپے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ میں IMF نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اس کا بھی اعلان کیا تھا۔ یہی جو بس سروس ہے اس کے حوالے سے کہتے تھے یہ جنگلہ بس سروس ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا۔ کراچی میں
कोयटा में वीडियो स्कैंडल में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से खवातीन की काबिल एतराज़ वीडियोस भी बरामद हुई हैं। एक माँ ने 2 बेटियों की काबिल एतराज़ वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर शिकायत की तो कोयटा पुलिस हरकत में आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई है। कोयटा से मोहम्मद खान काकड़। की कायम कौमी इस्लाही कमेटी के अराकीन की वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजनजोज से मुलाकात। अराकीन ने वज़ीर आला से कोयटा में खवातीन के वीडियोज स्कैंडल पर तशवीश का इजहार किया। वीडियोज स्कैंडल का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब एक खातून ने कायदाबाद पुलिस थाने में FIR दर्ज की। कहती हैं इनकी 2 बेटियों के काबिल एतराज़ वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने वीडियोस स्कैंडल के हवाले से ताहाल 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमान की तवील से बड़ी तादाद में नौजवान खवातीन के काबिल एतराज़ वीडियोस बरामद की। मोहम्मद खान काकड़, न्यू, कोयटा। श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा की हलाकत का मामला खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम आज सियालकोट जाएगी। खुसूसी टीम पेशावर में CTD ने कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक मुलजिमान मुनशियात का कारोबार करके रकम दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान से तफ्तीश में अहम इंकशाफात की तवक्को है। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद आलमजेब से। आलमजेब, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर के इलाका हज कैम्प में कार्रवाई की है और दहशतगर्दों के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान मंशियात फरोख्त करके रकम को दहशतगर्दों को देकर दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते थे। CTD के मुताबिक दोनों मुलजिमान को तफ्तीश के गरज से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आलमजेब आपका। और अब आपको बताएं कि बिजली, रोटी, दालें, घी समेत अशिया खरोनोश महंगी होने पर शहरी परेशान हैं। शहरियों ने कहा है कि PTI हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है महंगाई कम करने के दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए गए। आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, घ्यो भी महंगा है, उस सुबह बिजली भी महंगी है। गरीब आदमी जरा ना बहुत तंग है। 800 रुपये 900 रुपये दिहाड़ी होती है, मंजूरी का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पेट्रोल महंगा है, देखिए घी देख लें और बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, किधर पहुँच गए। गरीब बंदे का जीना आराम है। एक आम आदमी जो है वो महंगाई के तले इतना दब गया है कि उसकी महंगाई से कब्र बन गई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो बहुत हम डिपेंड नहीं कर सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिजली भी महंगी हो गई है। मजदूर की कमाई को देखे तो कुछ भी नहीं है, महंगाई के हिसाब से महंगाई ज़्यादा है और कमाई कम है। हर नया दिन जो होता है उसमें महंगाई का तूफान होता है। अशिया खुर्दो नोश के हवाले से देखा जाए, गैस के हवाले से देखा जाए, बिजली के हवाले से देखा जाए तो गरीब आवाम जो है वो अपनी उसी तरह चक्की में पिस रही है। कि जो हालात आप देख रहे हैं कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। यही गवर्नमेंट से पहले दावे करती थी कि बिजली महंगी होती है तो महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। अब ये गवर्नमेंट वो सारे कारनामे खुद सर अंजाम दे रही है। ਜਿਹੜਾ गरीब आदमी मजदूर बंदा ना ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। बड़ी महंगाई है, ना कोई सब्जियां सस्तियां, ना कोई आटा सस्ता, ना कोई चीनी सस्ती, बिजली उन्हें महंगाई। आटा, घ्यो, चीनी सब कुछ महंगा हो गया। गरीब बंदा क्या करेगा, तनख्वाह तो सैलरी तो पहले ही बहुत थोड़ी है। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। नमाज जुमा के बाद सिंध भर में भरपूर एहतजाज करके कौमी शाहराहों और हाईवेज पर धरने दिए जाएंगे। लाहौर और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे होंगे। कराची में दूध की सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद दूसरे रोज भी दूध फरोश मनमानी कीमत पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दुकानदारों ने कहा है कि डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में कमी नहीं की। दूध 140 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त जारी। जो कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन किया है वो एक तरफा नोटिफिकेशन है जो हमारे लिए कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तो मैं दरख्वास्त ये करता हूँ कमिश्नर कराची साहब से कि जनाब ये नोटिफिकेशन मेरिट पर नहीं है। दुकानदार कहते हैं डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में कमी नहीं की। कमिश्नर कराची साहब कह रहे हैं कि 120 रुपए में फरोख्त किया जाए और वहाँ से जो डेयरी फार्मर आ रहे हैं वो कह रहे हैं 140 रुपए फरोख्त किया जाए। हम बीच में दुकानदार फंसे पड़े हैं। शहरियों ने दूध की सरकारी कीमत पर फरोख्त का मुतालबा करते हुए मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जो कोशिश की है तो इनमें अल्लाह करे कि हो जाए,
बाकी अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो 140 भी मिल रहा है। जहाँ भी जाओ 140 145 रुपए लीटर ही मिल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमतों के तयन करने के लिए 4 जनवरी को तलब कर लिया। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वुहान तीसरे और वियतनाम का दारुलहुकूमत हनोई चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला और मुल्तान नुमाया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रुत बदली तो दीर बाला की फजाएं चपली कबाब की खुशबू से महक उठी। खुशबू भी ऐसी कि इंसान खाए बगैर रह न सके। शीरें हजरत की रिपोर्ट। खां का इलाका देरबाला सियाहत के साथ साथ लजीज पकवान के लिए भी मशहूर है। यहाँ गोश्त के बने चपली कबाब सर्दियों की खास डिश है। खुशबू ऐसी कि दिल खाने को मचलने लगता है। चपली कबाब बनाने वालों की चांदनी हो गई। लोग कहते हैं चपली कबाब यहाँ की सौगात है। कबाब बहुत मशहूर है जीरा पर की, तो इधर लोग बहुत आते हैं और ये कबाब वगैरह खाते हैं। गर्मा गर्म चपली कबाब लोग मजे ले लेकर खाते हैं और घर वालों के लिए पैक कराकर भी ले जाते हैं। बहुत अच्छा कबाब है, चपली कबाब है। ये सर्दी की वजह से खाते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी है ना, इसलिए गर्माइश की वजह से बहुत अच्छा खाते हैं। बहुत मजा करते, बहुत मजा आया। सर्दियां शुरू होते ही देरबाला में चपली कबाब की दुकानें आबाद हो जाती हैं। सियाह भी खास तौर पर इस लजीज डिश को एंजॉय करते हैं। सबके चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है कि नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन से ही ममालिक ने तरक्की की है। इस्लामाबाद में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, पब्लिक सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च के फंड्स दिए जाएं। एहसास स्कीम के तहत जो स्कॉलरशिप कर्ज दिए जा रहे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम सिर्फ यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहते हैं। तफसीलात क्या है राशिद मंजूर से भी हम जानेंगे, लेकिन अभी की खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल चौधरी रहमान ने कहा है कि नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राशिद मंजूर से भी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस अहम डेवलपमेंट के बारे में। आप सबके चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है कि नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन से ही ममालिक ने तरक्की की है। इस्लामाबाद में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च के फंड्स दिए जाएं। एहसास स्कीम के तहत जो स्कॉलरशिप कर्ज दिए जा रहे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाना चाहिए। एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा है, नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन से ही ममालिक ने तरक्की की है। इस्लामाबाद में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, पब्लिक सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च के फंड्स दिए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने एमडी-कैट और दीगर इम्तिहानात के लिए कंप्यूटराइज्ड इनकाद के लिए मुमकिना मुआहदे पर हुक्म इम्तिना का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को टेंडर बोली पर हतमी फैसला करने से रोक दिया। पीएमसी समेत तमाम फरीकैन को 20 दिसंबर को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को टेंडर बोली पर हतमी फैसला करने से भी रोक दिया। जस्टिस जवाद हसन ने निजी कंपनी की दरखास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अबूरी हुक्मनामे में कहा गया कि दरखास्त में SOAR टेस्टिंग लिमिटेड की काबिलियत पर सवालात उठाए गए। कंप्यूटराइज्ड इम्तिहानात ठेके की उम्मीदवार कंपनी की काबिलियत का मामला कौमी असेंबली और पेपरा में भी जेर बहस रहा। कारोबार और तिजारत करना दरखास्त गुजार का भी आईनी हक और हुक्म इम्तना का तवाज़ुन भी दरखास्त गुजार के हक में है। लाहौर हाईकोर्ट ने PMC समेत तमाम फरीकैन को 20 दिसंबर को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया।